friends, welcome back to your physics online class. In the last lecture, in the last tutorial, we have started the chapter number 2, units and measurement, and let's continue this chapter with the topic. Write down the topic here: the practical units for measuring small distances. See the topic here: the practical units for measuring small distances. Students, in the last lecture, I think, or before that, we have discussed one smaller unit, 1 Fermi. To write down 1 Fermi is a smaller unit. Many more are there also. Let's start with the Fermi first. 1 Fermi equals to 10 to the power minus 15 meter. So this one is the small distance measuring unit. Small distance, कितनी distance? तो लग रहा है 10 power minus 15 meter. तो this is the order of size of nucleus. तो न्यूक्लियस की साइज या एटम की साइज को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज दिस यूनिट, दैट इज फर्मी. नेक्स्ट यू कैन राइट 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी आई थिंक आपने सुना होगा. 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 power minus 10 meter. Another smaller unit for measuring the small distances. Next, अच्छा ये इसकी बात करें एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम जनरली वी यूज दिस यूनिट फॉर द मेजरिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन राइट हियर 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर 10 to the power minus 9 meter. So this is also one of the smaller unit for measurement of small distances. Next, similarly, 1 micron. 1 micron या इसी को बोलते हैं माइक्रोमीटर. 1 micron equals to 10 to the power minus 6 meter. ठीक है. और भी बहुत सारे छोटे यूनिट्स हैं, बट जनरली वी यूज दीज 4 स्मॉलर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस. ठीक है. सो ये हो गए छोटे यूनिट्स. Let's write down the next is bigger units, large distances के लिए. तो next heading is the practical units for measuring large distances. Smaller से कहीं ज़्यादा important large distances units हैं, in which first is light year. In which first is, write down light year. In live classes we have defined this term light year. What is light year? I am defining here again. Light year means 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. ठीक है ना. एक साल में लाइट ने वैक्यूम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज कॉल्ड द 1 लाइट ईयर. सो यू नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 meter per second. क्या ये दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर ऑल्सो. एंड द टाइम टेकन कितना बताया? टाइम टेकन बताया 1 ईयर. 1 ईयर equals to 365.25. This is the number of days, average number of days in 1 year, including the leap year also. And this is the number of days, so multiplied by 24 hours, फिर multiplied by 3600. So this will give you the time in 1 year. Now in second, एक साल में कितने सेकेंड हुए? जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड विद दिस प्रोडक्ट.
ठीक है, अब टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया. नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. Distance equals to speed into time. So speed 3 into 10 power 8 and time, this is the times 365.25 into 24 into 3600. So finally you will get the distance in meter because both are in SI unit, both are in MKS unit you can say. So product of these two give you the distance in meter, and it is equals to, it is 9.496 into 10 to the power 15 meter. This is the distance and it is equals to 1 light year. 1 light year. 1 light year. This is the distance. 9.45. Yeah, 9.496 into 10 power 15 meter. अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं 9.5 भी लिख देते हैं, 9.5 इंटू 10 पावर 15 मीटर. तो दिस इज द लाइट ईयर. नोट डाउन द लाइट ईयर. व्हाट इज द लाइट ईयर मीनिंग? एंड फॉर इन सम बुक्स इट इज गिवन 9.467. ठीक है ना, आई एम राइटिंग अगेन हियर 9.467. तो ये वेरिएशन मिल सकता है डिफरेंट बुक्स में, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू यूज करते हैं 9.5. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट बिगर यूनिट आफ्टर लाइट ईयर. नेक्स्ट वन इज 1 AU. 1 AU. 1 AU बताया था मैंने. 1 AU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. दिस इज the astronomical unit. You can write here astronomical unit, और शॉर्ट में बोलते हैं AU. अब सुनो ये 1 AU क्या है. तो you know that the orbit of the earth around the sun is not circular, it is elliptical. तो elliptical है तो continuously its position from the sun changes. इस तरह के पाथ पे जिसे बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है ना, तो सन से अर्थ की डिस्टेंस जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी. पहले इट विल फ्रॉम सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो इट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. एट दिस पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मिनिमम, एंड एट दिस पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम. So because of this varying distance between varying distance between sun and earth, we use the average distance or mean distance between sun and earth. ठीक है, average distance between sun and earth, and this average distance या mean distance between sun and earth is equal to 1 AU. इसी को बोलते हैं 1 AU और 1 astronomical unit. 1 AU equals to 1.46496. It is 1.496 10 to the power 11 meter. This is the value of mean distance between sun and earth. Write down this value 1.496 into 10 to the power 11 meter. तो ये AU है, astronomical unit. Average distance between या mean distance between sun and the earth. Now next, third one, very interesting, very important, that is parsec. Parsec को लिख सकते हैं आप, this is the biggest practical unit for measurement of distances between the celestial bodies. ठीक है ना, या कह दो एस्ट्रोनॉमी में यूज होने वाली सबसे बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज पार्सेक. ठीक है, अब सुनो ये पार्सेक क्या है. तो सी द डायग्राम अगेन. लाइव क्लास में मैंने ये डायग्राम बताया हुआ है. नाउ सी अगेन.
Suppose this is sun and this is earth, and you know that distance between these two, average distance between these two is 1 AU. Distance between sun and earth is 1 AU. So this, suppose this is the arc length, and this arc length subtended angle equals to 1 second. एंगल इक्वल्स टू 1 सेकेंड. 1 पे डबल लाइन ऐसे कर दिया, 1 पे डबल लाइन बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड रिटन एज 1 सेकेंड. ठीक है, ये 1 सेकेंड इसे बोलते हैं. तो दिस आर्क लेंथ इक्वल्स टू 1 AU सबटेंडेड एंगल 1 सेकेंड एट अ डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक. कौन सी डिस्टेंस? तो ये जो कह रहा है आर्क जो है 1 AU के इक्वल आर्क जितने डिस्टेंस पे जा करके एक एंगल सबटेंड करेगी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक. या जैसे किसी ने मुझे लाइव क्लास में पूछा था कि दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर. तो यस, तो ये सेक्टर जैसा दिख रहा है, सेक्टर में ये आर्क है और ये हो गई उसकी रेडियस हो जाएगी 1 पार्सेक. तो दिस इज द पार्सेक. डिफाइन कैसे किया था? दिस इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU आर्क लेंथ सबटेंडेड एंगल इक्वल्स टू 1 सेकेंड. तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक. ठीक है, तो इस 1 पार्सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? रिलेशन यूज कर सकते हैं. फॉर्मूला है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. रिलेशन है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. एंगल दे रखा हुआ है 1 सेकेंड, बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकेंड इनटू द रेडियन. क्यों रेडियन में? बिकॉज रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ एंगल. 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है. आर्क लेंथ इट इज गिवन 1 AU. 1 AU की वैल्यू जानते हैं इन SI सिस्टम, या मीन्स इन मीटर यू कैन से. दिस इज 1 point approximate value we are using here, 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. तो AU दे रखा हुआ है, मीन्स आर्क दे रखा हुआ है, एंगल दे रखी हुई है, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे. सो एंगल मिल गया, आर्क मिल जाएगी, तो यू कैन कैलकुलेट द रेडियस, यू कैन फाइंड द रेडियस, एंड दिस रेडियस इक्वल्स टू पार्सेक, 1 पार्सेक. ठीक है, अब देखो, अब ये सवाल बनता है कि दिस एंगल इज 1 सेकेंड and how to convert it into the radian. तो रेडियन और सेकेंड में रिलेशन बनाना है आपको. ठीक है, रेडियन एंड सेकेंड में रिलेशन. तो रेडियन एंड सेकेंड रिलेशन से पहले जानना होगा कि रेडियन एंड डिग्री में क्या रिलेशन है. राइट डाउन द रिलेशंस. इट इज 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन. पहला रिलेशन नोट करेंगे. क्या रिलेशन हो गया? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन. इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो. ये डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन बता दिया. अब नाउ वी हैव टू रिलेट सेकेंड एंड डिग्री. सेकेंड एंड डिग्री का रिलेशन जानना है. तो राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड डिग्री. 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड. 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड. ये कैसे बना हुआ है? तो यहां अलग से नोट कर लें कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. अगर 60 पे एक डैश लाइन बनाया है तो क्या पढ़ेंगे इसे? 60 मिनट. एंड सिमिलरली 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. इसे भी नोट कर सकते हो. ये सब यूनिट्स ऑफ एंगल हैं. डिग्री हुई, सेकेंड हुई, या मिनट हुआ या सेकेंड हुआ या रेडियन हुआ, ये सभी यूनिट्स ऑफ एंगल्स हैं. तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. तो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन वी हैव 1 डिग्री इक्वल्स टू 3600 सेकेंड. ठीक है, अब जब जान चुके हैं कि 1 डिग्री और सेकेंड रिलेशन क्या है, तो यू कैन यूज दिस वैल्यू हियर.
इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से क्या मिलेगा? 1 डिग्री की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 3600 सेकेंड इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, देख लो नीचे फिर से, ये लिख दिया मैंने 3600 सेकेंड इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी गई है। नाउ अगर 3600 सेकेंड इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, देन 1 सेकेंड इक्वल्स टू पाई बाई 180 and multiplied by pi 1 by 3600 now in radian. So note down this important relation. Note down this important relation. क्या relation है? 1 second equals to pi by 180 1 by 3600 रेडियन। अब सेकेंड को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। जब रेडियन को सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, नाउ अगेन use the relation angle equals to arc upon radius to find this radius distance, radius length। ठीक है, सब नोट कर लिया होगा। now again क्या फॉर्मूला है हमारा? angle equals to arc upon radius, angle equals to arc upon radius। ठीक है, एंगल इट इज गिवन, या ऐसे कह दो रेडियस हमें निकालनी है, रेडियस निकालनी है, सो इट इज आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। आर्क मैंने बता दिया इट इज 1 AU एंड एंगल है 1 सेकेंड। आर्क की लेंथ 1 AU, एंगल की वैल्यू 1 सेकेंड। अब easily you can put this values, 1 AU की वैल्यू बता दिया 1.5 10 power 11 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, या 1.496 you can use for 1 AU, and 1 सेकेंड को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। see here 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल इन रेडियन नाउ। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख करके यू कैन फाइंड द रेडियस, एंड रेडियस निकल जाएगी तो यही होगी आपकी दिस लेंथ, and this length equals to 1 parsec। so finally 1 parsec जब सॉल्व करोगे, मीन्स इस वैल्यू को रख करके सॉल्व करोगे, तो यू विल गेट द 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। सब कुछ एसआई में रखा हुआ है तो आंसर भी आपको एसआई में मिलेगा, मीन्स इन मीटर मिलेगा डिस्टेंस 3.08 10 power 16 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 parsec। so just we have seen the 3 units, 3 bigger units, light year, 1 AU या parsec, इन सब में जो ऑर्डर है, सबसे बड़ी ऑर्डर की यूनिट है, दिस इज द parsec ओनली। तो यही बोलेंगे कि प्रैक्टिकल यूनिट जो एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, इट इज parsec ओनली। ठीक है, तो ये parsec था। और भी बताई गई है कि इससे बड़ी यूनिट है, ऐसे नहीं कि ये सबसे बड़ी यूनिट है, इससे बड़ी यूनिट्स हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमी में जो बिगेस्ट यूनिट है इसको आपने पार्सेक ही लिखना है। तो दिस इज अबाउट द यूनिट्स। ठीक है, स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट्स, इनमें सिर्फ आपको लेंथ के लिए पढ़ना था। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट स्टार्ट द टॉपिक हियर। दिस इज, जैसे मैंने बताया कि उसको बताया फिजिकल यूनिट्स को मैंने बताया, या फिजिकल क्वांटिटीज को, कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मेजरमेंट के लिए कुछ मेथड्स हमें देखने हैं। मैंने बताया था इनडायरेक्ट मेथड में क्या होते हैं, टेक्निक्स, वी यूज द टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है एंड टेक्निक्स ऑल्सो। सो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। राइट डाउन द टॉपिक नाउ हियर, दिस इज पैरालैक्स। राइट डाउन द टॉपिक पैरालैक्स।
तो ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे आप जो है एक लॉन्गर डिस्टेंस जो है मेजर करते हैं, लाइक डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स या अर्थ एंड अदर स्टार्स। इस तरह के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है पैरालैक्स मेथड। और भी टेक्निक्स हैं, जैसे कि जानते हो लेज़र मेथड है, रडार मेथड है ना। लॉन्गर डिस्टेंस इन वाटर वी यूज़ द मेथड, आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेज करके यूज़ करते हैं। तो मेथड्स बहुत सारे हैं, बट इन योर सिलेबस द इम्पॉर्टेंट वन इज पैरालैक्स। तो पैरालैक्स हमें यहाँ पढ़ना है, ठीक है। सी हियर द नाउ व्हाट इज पैरालैक्स, या पैरालैक्स मेथड है क्या। तो पैरालैक्स मेथड को मैं आसानी से तुम्हें समझा सकता हूँ इस तरह से कि दिस इज द एपरेंट शिफ्टिंग। क्या है ये? दिस इज द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन वी चेंज आवर आइज साइडवाइज। लिखेंगे फिर से, या तो लाइव क्लास में जब होगी तो इसके बारे में फिर से मैं आपको नोट्स दूंगा ही, आप यहां भी समझ लें। क्या है ये पैरालैक्स? तो कह रहा है कि पैरालैक्स इज द एपरेंट शिफ्टिंग। पैरालैक्स इज द एपरेंट, एपरेंट का मतलब हो गया आभासीय, नॉट एक्चुअली। फिर समझ लो, पहले स्टेटमेंट सुन लो। पैरालैक्स इज द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन वी चेंज आवर आइज साइडवाइज, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये मार्कर या पेन आपके सामने है, ठीक है, एंड व्हेन यू सी दिस टिप ऑफ द मार्कर या टिप ऑफ द पेन विद योर लेफ्ट आई, ठीक है, विद योर लेफ्ट आई एंड विद हैविंग एन बैकग्राउंड ऑल्सो। जैसे मान लो इसको अपने देख रहे हैं तो इसके पीछे आपके वॉल होगी या कुछ अदर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे अनदर ऑब्जेक्ट या बैकग्राउंड मान सकते हो, ठीक है। और अब क्या करो कि इस पेन को, उस बैकग्राउंड को एक साथ देखना है तुमको, एक्चुअली फोकस करना है आपको इस टिप ऑफ द पेन पे विद योर लेफ्ट आई एंड देन बाय राइट आई। लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट देन राइट, अगर मतलब कह रहा है कि अपने आईज को साइड वाइज चेंज करोगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि पेन अपनी जगह पर है, अपने होल्ड किया हुआ एक जगह पर, लेकिन फिर भी इट इज शिफ्टिंग एपरेंटली। फिर समझा दें कि पेन या पेंसिल टिप जो होगी, अगर आप उसको लेफ्ट आई से देन राइट आई से देन लेफ्ट देन राइट इस तरह से देखते हो तो लगेगा क्या होगा कि ये एक जगह फिक्स है, फर्मली होल्डेड है, उसके बाद भी लगेगा कि ये शिफ्ट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड द एपरेंट शिफ्टिंग, दैट इज पैरालैक्स। बात समझ में आ गई? रिपीटिंग अगेन, द एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पेन, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि बैकग्राउंड वॉल, ठीक है ना, व्हेन वी चेंज आवर आइज साइडवाइज, तो दिस इज कॉल्ड द पैरालैक्स। अब इस पैरालैक्स मेथड से वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थ एंड अदर स्टार्स, ठीक है। तो ये जो मेथड होगा, ये मेथड कहलाएगा पूरा पैरालैक्स मेथड। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वी विल डिस्क्राइब दिस पैरालैक्स मेथड, ठीक है। So for today's class, for today's tutorial, thank you very much and God bless you. Thank you.